केआरके ने आज आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे। हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं, एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं, ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये केआरके जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है। उसको आई थिंक उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए। प्लीज कीप क्वाइट अनुराग, प्लीज कीप क्वाइट अनुराग। मेरी ये दरखास्त है कि कोई अनुराग से अब सवाल नहीं करेगा। रणबीर, तो ये आइस बॉक्स हम उनको भेज रहे हैं। Ever since the promotions of Anurag Kashyap's upcoming film Bombay Velvet started, controversial critic Kamal R. Khan has been taking pot shots at the film and its makers by writing nasty things about them on Twitter. A few weeks back, KRK had tweeted, "I have not reviewed any film this week because Karan Johar and Anurag Kashyap threatened and asked me to not review any film anymore." KRK had also tweeted that Johar and Kashyap had threatened him and warned him against giving a negative review to the film, to which Kashyap had replied, "For the record, I have nothing to do with Mr. KRK stopping to review films. I think he is shit scared that he will have to eat his words. So he blames it on me because it's also easy to believe that I must have done it. There are genuine reviewers who give bad reviews to a lot of my work and I respect that. You are just insignificant, Mr. KRK. Maybe you've lost your mojo and they don't enjoy laughing at you anymore." Not only this, during the second trailer launch of the film, Anurag had declared, केआरके ने आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे। हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं, एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं, ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये केआरके जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है। उसको आई थिंक उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए। प्लीज कीप क्वाइट अनुराग, प्लीज कीप क्वाइट अनुराग। मेरी ये दरखास्त है कि कोई अनुराग से अब सवाल नहीं करेगा। रणबीर, तो ये आइस बॉक्स हम उनको भेज रहे हैं। Not to be outdone by this, KRK had replied, "Bhai Anurag Kashyap, just see my track record for full 2015. No film has proved me wrong, so bro, guaranteed you will be hatiyarless on 15th. Karan Johar will get married with Anurag Kashyap on 15th May cause Anurag will become hatiyarless on that day and become same like Karan Johar." Well, now that the release of Bombay Velvet is around the corner, we can't help but wonder who will cut off his hatiyar on May 15. याद है एक सीन था जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था, तो करण बहुत चार्ज हो गया एंड ही सेड तू मुझे दबा, लाइक गो फॉर इट, यू नो, आई डोंट केयर। नहीं, नॉट इन दैट वे, वो टाइप ऑफ दबाने। तो मैंने जो दबाया करण को गाड़ी के शीशे पर, उसको लगने लगा, बट ही बिकेम सच अ मेथड एक्टर कि ही जस्ट सेड नहीं यू गो फॉर इट, तू दबाते जा दबाते जा दबाते जा। Eventually जब पैकअप हुआ रात को, he had a migraine and he had to take like things because his head started hurting, but he was wonderful to work with. अच्छी तरह नहीं दबाया, कि अच्छी तरह नहीं दबाया, ठीक तरह दबाया होता ना तो फिर लगता नहीं। It's named Bombay Velvet, but I feel only Karan sir is wearing the velvet suit. Why others are not wearing that? We are all wearing Bombay on मेरा our faces. अंडरवेयर वेलवेट का है। मेरा भी। Talking about Twitter, recently KRK posted a picture. I'm sure you must be aware about it. So I want Karan to react on this because the message was from you to him. Like that's what he has put a screenshot of. Can I ask you a question? Yeah. Do you believe I sent him that No, message? of course not. But then I rest my case then. अनुराग को डायरेक्ट करना हुआ, किस रोल में आप रखेंगे अनुराग को? मैं नहीं लूंगा अनुराग को। क्यों? नहीं, मैं गुड लुकिंग एक्टर्स को लेता हूँ। मैं अनुराग को क्या लेके क्या कर लूंगा? पिक्चर नहीं बनाते। मैं पागल हूँ। हम एक दूसरे को I was going to say something worse. I don't know मेरा क्या हो गया, मैं कुछ भी कहूँ कोई और मतलब निकलता है। लेकिन नहीं, मैं अनुराग को, वो मेरे टाइप का कास्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी पिक्चर बनाऊंगा नहीं जिसमें अनुराग फिट हो। अनुराग को कभी न्यूयॉर्क में इमेजिन किया है? वो गैंग्स ऑफ हसीपुर, वो या तो गांव में चला जाता है या 60s में। वो अब्रॉड में फिल्में नहीं शूट करती अनुराग को, सॉरी। बॉलीवुड की आपने जो फ्रेंड्स हैं बॉलीवुड में, उनकी तरफ से कैसे? बॉलीवुड में किसके फ्रेंड्स होते हैं? इंसान होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते।
वो क्या कहेंगे, वो तारीफ मुंह पे तो तारीफ ही करते हैं, फिर ट्विटर पे लिख लेते हैं अगर कोई खराब बात करनी हो या पीठ के पीछे। अभी हमने जो किया है वो सिर्फ जो आप हो मीडिया, फेमस ऑफ द मीडिया, जो मैं खुद हूं क्योंकि मैं टॉक शो होस्ट हूं, तो आई ऑलवेज थिंक आई एम अ मेंबर ऑफ द मीडिया, तो मैं आप सबकी राय सुनना चाहूंगा। मैं अभी इंडस्ट्री वाले से क्या पूछना। आपने खासकर करण जी में क्या बात देखी कि इतना जबरदस्त रोल कर पाएंगे, जरा बताइए, आपने कैसे कन्विंस किया, वो कैसे तैयार हुए? आपने मुझ में खामी क्या देखी कि आपने ये सवाल किया? आपने बहुत दिख नहीं रहा इतना सेक्सी सा आदमी हुआ, कोई भी कास्ट करेगा मुझे। दिख नहीं रहा इतना सेक्सी सा आदमी हुआ, कोई भी कास्ट करेगा मुझे। उन्होंने आपके बारे में, बैंड्रा के बारे में बताया, आप पूरे बॉम्बे, पूरे इंडिया में सेक्सी हैं, लेकिन आपने काम बड़ा अच्छा किया था। आपने क्या देखी बात? आपने ट्रेलर देखा? बहुत अच्छा हुआ। और ट्रेलर में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अगर वो आपने देखा, वो एक्चुअली ट्रेलर है। आप जब फिल्म देखेंगे और फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे अच्छी कास्टिंग कोई हो नहीं सकती थी। मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ। करण जी को मैं नरेट करने गया था, उसके पहले हम लोग नसीर जी और बहुत सारे अदर दूसरे एक्टर्स से बात कर रहे थे और बातें कभी कंप्लीट नहीं हुई थी। जब मैंने करण को कास्ट किया, पहला मैसेज मुझे नसीरुद्दीन शाह का आया, क्योंकि वो रोल जानते थे। उन्होंने कहा, दिस इज द मोस्ट इंस्पायर्ड कास्टिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ बिकॉज ही इज योर खम्बाटा। ये नसीरुद्दीन शाह ने मुझे मैसेज करके बोला। आई वॉज इंस्पायर्ड एंड चीप बाय द वे, क्योंकि मैंने ये पिक्चर 11 रुपए में की है। मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि आई हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। करण हमारे बजट को बढ़ा नहीं पाए। हाँ, मुझे 11 रुपए, बाकायदा 11 रुपए का चेक मुझे मिला है फैंटम से, तो इसलिए मैं इंस्पायर्ड हूं और थोड़ा सस्ता भी। बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट बाय कश्यप साहब। No, I'm so happy he said yes to the film, and when you see him in the film, you'll see that there's nobody else who could have been Khambata. For more on movies, fashion and entertainment, stay tuned to MovieTalkies.com.